Welcome students, good morning all of you. Until the last period we solved examples up to 21. Today we are starting example from 22. Students, example number 22. If y is equal to sine in bracket a sine inverse x, then prove that 1 minus x square into y2 minus xy1 plus a square y is equal to 0. Students, here y1 is first derivative dy upon dx, it's okay, and y2 second derivative d2y upon dx square. स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. जब 1 टाइम जो डिफरेंशिएट होगा dy upon dx, उसको हम राइट करेंगे y1. जो सेकेंड टाइम जो डिफरेंशिएट होगा d2y upon dx स्क्वायर जो आएगा, उसको हम राइट करेंगे y2. इट्स ओके. सॉल्यूशन, first of all given y is equal to sine in bracket a sine inverse x, make an equation first, then prove that differentiate with respect to x on both sides of an equation first, of an equation first. So y of differentiate with respect to x dy upon dx, लेकिन dy upon dx यहाँ पर क्या है, y1 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट y1 से करना है. y1 is equal to sin differentiate of sin cos a sin inverse x as it is, y a sin inverse x is theta of sin, तो ये थीटा किसका, cos का भी होगा. अगेन डिफरेंशिएट a sin inverse x, again differentiate a sin inverse x, y1 as it is cos in bracket a sin inverse x into a is constant as it is into differentiate of sin inverse x, differentiate of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, y1 से होगा. तो अगेन स्टेप इसकी क्या होगी, y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आगे आ गया कोस इन ब्रैकेट a साइन इनवर्स x. इट्स ओके. इट्स ओके. अब यू नो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि ये रूट क्या हो, कैंसिल हो जाए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो y1 ऑफ स्क्वायर y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल होगा, ओनली राइट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज. स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, यू नो y1 square as it is 1 minus x square a square. Let theta, let a sin inverse x is equal to theta. Let so cos square theta, then cos square theta 1 minus sin square theta, 1 minus sin square, 1 minus sin square theta a sin inverse x. It's okay. स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा एज इट इज. इट्स ओके. ये आपके पास में आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इट्स ओके. अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या नेक्स्ट स्टेप y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज
एज इट इज 1 एज इट इज माइनस यू नो साइन इन ब्रैकेट ए साइन इनवर्स एक्स, ओनली साइन इन ब्रैकेट ए साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू किसकी है, y की है, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इट्स ओके, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इट्स ओके स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज माइनस ऐसा कैसा साइन ए साइन इनवर्स एक्स वैल्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया। इट्स ओके, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन differentiate with respect to x on both sides, on both sides. It's okay. So students, y1 square is first and 1 minus x square is second. So differentiate of this value by multiply method. It means first as it is divide dx of second plus second as it is divide dx upon divide dx of first. y1 square as it is divide dx of second 1 minus x square of divide dx minus 2x. It's okay, plus second as it is divide dx of first y1 square of divide of differentiate 2y1 2 in multiply y1 as it is y1 of differentiate again y2. It's okay, is equal to a square as it is 1 of differentiate 0 minus y square of differentiate 2y y of differentiate y 1. It's okay students, next step, next condition, minus 2x y1 square plus 2y1 y2 into 1 minus x square is equal to minus 2y y1 into a square. स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वल टू में 0 रहना चाहिए एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो, वाई टू से हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे है, 2y1 y2 से। इट मीन्स यहां से क्या हटना चाहिए, यहां से हट जाना चाहिए 2y1। इट मीन्स डिवाइडिंग बाय 2y1। इट्स ओके ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय 2y1 on both sides. Students, so 2 is cancel and y1 square, तो y1 cancel, only remainder minus x y1। स्टूडेंट्स इसमें हमने इसका डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 स्क्वायर से कैंसिल होने y1 बच गया, तो रिमाइंडर क्या रह गया, माइनस माइनस 2 कैंसिल हो गया तो x आ गया और y1 आ गया, प्लस 2y1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, y1 से y1 कैंसिल होगा तो क्या आ गया, y2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स ओके, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, तो देन स्टूडेंट्स इसमें रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर है माइनस ए स्क्वायर वाई। इट्स ओके, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इसकी जैसे जो हमें प्रूव करना है। सो नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर, चेंज इन लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। इट्स ओके स्टूडेंट्स, क्या था, हमें जो फंक्शन गिवन है हमने उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके, फर्स्ट जो डिफरेंशिएट हुआ वो है dy अपॉन dx रिप्रेजेंट बाय y1
एंड अगेन डिफरेंशिएट किया, वो हुआ y2, और y2 रिप्रेजेंट किया dy अपॉन dx स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, हमने इसको y2 रिप्रेजेंट किया, y1 को हमने y1 ही लिखा है, इट्स ओके। जो हमने dy अपॉन dx हमारे पास में आया उसको हमें क्या लिखेंगे, y1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6। स्टूडेंट्स एग्जांपल एक्सरसाइज 7.5 आपकी कंप्लीट हो गई, और 7.5 से जो रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी आपके कंप्लीट सोल्व हो गए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 पढ़ने से पहले यहाँ पर आपके पास कुछ दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है रोल्स थ्योरम, एंड सेकंड थ्योरम है लाग्रांज थ्योरम। उसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ने से पहले हम इसके देखते हैं थ्योरम। फर्स्ट है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, और सेकंड है लाग्रांज थ्योरम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, व्हाट इज द रोल्स थ्योरम? स्टूडेंट्स रोल्स थ्योरम, इसका देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रोल्स थ्योरम, आपके पास एक रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन आपके पास में एक fx एक रियल फंक्शन होगा। वो जो रियल फंक्शन है वो डिफाइंड होगा एक क्लोज इंटरवल पर। आपको एक क्लोज इंटरवल दिया होगा, एक आपको रियल फंक्शन दिया होगा। जो रियल फंक्शन है वो डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल पर। उसकी कंडीशन 3 है। अगर 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो उसमें रोल्स थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, उसमें डिफाइंड होगी। 3 कंडीशंस क्या है, जो फंक्शन f है इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें, क्लोज इंटरवल में। एंड फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल में होना चाहिए, और f इक्वल टू f भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फिकेशन होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो वहां रोल थ्योरम डिफाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रोल थ्योरम्स। राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ द रोल थ्योरम्स। ओके, तो देखिए इफ ए रियल फंक्शन f या fx डिफाइंड। स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से देखना, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। इफ ए रियल फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल if a real function f defined on closed interval a, b। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है a, b, such that यहां पर 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ ए रियल फंक्शन f defined on closed interval a, b such that number 1 point function f is continuous in closed interval
क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पर, क्लोज इंटरवल में। इट्स ओके। सो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। सेकेंड स्टेप, सेकेंड कंडीशन, फंक्शन एफ या एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval a comma b। सेकेंड जो कंडीशन है, फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b। थर्ड कंडीशन, f a इज इक्वल टू f b। स्टूडेंट्स आपको जो इंटरवल जो गिवन है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है और लास्ट वैल्यू क्या है, b है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम फंक्शन में फंक्शन f में x की जगह पुट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी f a की, वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए f b के। आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर a रखेंगे पहले, फिर यहाँ पर b रखेंगे, फिर दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो यहां पर क्या होगी, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी। इट्स ओके, आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट्स क्या है इसका, इफ ए रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, आपको एक फंक्शन गिवन होगा वो क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। तो डिफाइंड है तो आपके पास ये थ्री कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होंगी। कंडीशन फर्स्ट, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। और थर्ड कंडीशन एफ इज इक्वल टू एफ बी। yes or no? तो देयर आर थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाई, देयर आर थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई। तो यहां पर क्या होगा, रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, डिफाइंड होगी, सच दैट there exists at least one real number C in open interval a comma b। स्टूडेंट्स तब क्या होगा, अगर ये थ्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं तब क्या होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन रियल नंबर। जो वन रियल नंबर जो C है वो बिलोंग किससे करेगा, a कोमा b से करेगा। देखो ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, ये जो C की वैल्यू है वो इन दोनों के बिटवीन की वैल्यू, बीच की वैल्यू होगी। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और तब क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स एफ डैश सी कहां से आएगा, आपको जो फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, आपको जो फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। और एफ डैश एक्स में एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, तो वो वैल्यू क्या होगी, एफ डैश सी होगी। इट्स ओके। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट्स ओके। और यहां से जो आप सी की वैल्यू फाइंड करोगे वो बिलोंग किससे करेगी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम। इट्स ओके, कि जो रोल्स थ्योरम है उसका स्टेटमेंट राइट करो, लिखो। तो ध्यान सुनना, इफ ए रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, आपके पास एक फंक्शन होगा, वो रियल फंक्शन होगा, वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पर, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर। तो रोल्स थ्योरम तभी सेटिस्फाई होंगी जब इसकी थ्री कंडीशंस क्या होंगी, प्रूव हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस इंटरवल पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल
इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और जो फंक्शन एफ है वो इस ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एफ इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू क्या, एफ बी इक्वल होना चाहिए। ये सुनो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या होंगी, डिफाइंड होगी। तो लास्ट में हम क्या राइट करेंगे, सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग किससे करेगा, ए कोमा बी से, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सी बिलोंग किससे करेगा, ए कोमा बी से। इट्स ओके। तो ये है स्टेटमेंट किसका, रोल्स थ्योरम का। इट्स ओके। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। इट्स ओके। नेक्स्ट है लाग्रांज थ्योरम्स, प्लीज राइट। नेक्स्ट है लाग्रांज थ्योरम। स्टूडेंट्स, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट्स क्या है एंड रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम्स, इसका स्टेटमेंट देखिए। वही कंडीशन है, इफ ए रियल नंबर, इफ ए रियल फंक्शन एफ, इफ ए रियल फंक्शन एफ defined on closed interval, on closed interval a comma b। स्टूडेंट्स, जो लाग्रांज जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट भी यही है, बस उसमें एक कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है। इट्स ओके। तो ध्यान से देखिए लाग्रांज थ्योरम स्टेटमेंट, इफ ए रियल फंक्शन, आपके पास में एक रियल फंक्शन एफ है, वो डिफाइंड होगा किस पर, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर, सच दैट। तो यहां पर टू कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन वही है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यस और नो। एंड फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। जो फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल क्या, ए कोमा बी में। इट्स ओके। सच दैट देयर एग्जिट्स एट लीस्ट वन रियल नंबर C in A comma students such that there exists at least one real number C in A comma B, then f dash C is equal to FB minus FA upon B माइनस ए। स्टूडेंट्स, लाग्रांज थ्योरम में क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ जो सी जो वैल्यू फाइंड होगी वो बिलोंग किससे करेगी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। तो ये स्टूडेंट्स लाग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट्स। इट्स ओके। लाग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट्स क्या है, आप ध्यान सुनना। इफ ए रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, एक रियल फंक्शन होगा वो क्लोज्ड इंटरवल पर क्या डिफाइंड है। इट्स ओके। उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तब थर्ड कंडीशन क्या होगी इसकी, तो क्या होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर जो सी होगा वो बिलोंग किससे करेगा, ए कोमा बी से।
देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। स्टूडेंट्स इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको एक इंटरवल गिवन होगा ए कोमा बी, इट्स ओके। सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन गिवन है। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि फंक्शन गिवन है, आपको एक क्लोज्ड इंटरवल आपको गिवन है, तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कीजिए कि इसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स ओके। इंटरवल x बिलोंग्स टू a कोमा b, जो x है वो बिलोंग किससे है, क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b से है। स्टूडेंट्स यहाँ पर a इक्वल टू वैल्यू कितनी है, a है, और b की वैल्यू कितनी है, b है, इट्स ओके। अगर यहाँ पर होता 1 and 2 तो a की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, और b इक्वल टू 2 होता, इट्स ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एवरी पॉइंट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, इट्स ओके। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या राइट करेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, इट्स ओके। फिर क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टेप फर्स्ट, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या है बताइए, कंटिन्यूअस है। बेटा कंटिन्यूअस कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना। आपने 6 चैप्टर में वैसे आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो x है वो बिलोंग किससे करेगा, a कोमा b से। तो x की वैल्यू a भी हो सकती है और b भी हो सकती है, और x का मान इसके बीच का भी हो सकता है, इट्स ओके। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इस x की जगह और उसका स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करने के बाद अगर वो एक रियल वैल्यू आती है, क्या आती है, रियल वैल्यू, इट मींस ईच एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। अगर रियल वैल्यू आ रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b पर। ऐसे ही इसका डिफरेंशियल चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x होगा। डिफरेंशिएबल में हम इसका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किस में से लेंगे, ओपन इंटरवल में से। x की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लेंगे, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में x की वैल्यू लेंगे, इसमें से x की वैल्यू लेंगे, तो मतलब x बिलोंग्स टू a कोमा b। तो x की वैल्यू न तो a होगी न b होगी, इसके बीच की वैल्यू होगी। इसके बीच की वैल्यू को हम यहाँ x की जगह रखेंगे, और x की जगह रखने के बाद इसकी कंप्लीट वैल्यू अगर रियल नंबर आती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कोमा b, इट्स ओके। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं देन f डैश c, आपने f डैश x निकाला है तो x की जगह हम c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश c। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2c। इसका मतलब इस f डैश c की जगह पर क्या आएगा, 2c आएगा। 2c इज इक्वल टू एफ बी क्या है, ये जो क्लोज इंटरवल है इसकी जो लास्ट वैल्यू है उसको x की जगह रखेंगे तो एफ बी होगा। इस एफ बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ऐसे ही एफ ए की वैल्यू, यहाँ जो इंटरवल में जो फर्स्ट वैल्यू है वो a होता है, इस a को पुट करेंगे x की जगह। एफ ए की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह, इट मीन्स ओके, अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें जो c की वैल्यू फाइंड होगी वो c की वैल्यू बिलोंग होनी चाहिए ओपन इंटरवल a कोमा b से। अगर ओपन इंटरवल a कोमा b से फाइंड है देन वी से दैट यहां जो लाग्रांज थ्योरम है वो क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसे रोल्स थ्योरम में क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डैश सी क्या है, उस जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहां x की जगह क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे, एफ डैश सी आएगा इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो वहां पर एफ डैश सी की वैल्यू 2c इक्वल टू 0, क्योंकि रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 में 2 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है रोल्स थ्योरम
रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस हैं, अगर 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो रोल्स थ्योरम वहां पर डिफाइंड होगी। और रोल्स थ्योरम का लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इट्स ओके। और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सी की। एंड लाग्रांज थ्योरम में क्या है, 2 पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई करने हैं, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो लास्ट सेंट इसका स्टेप क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी। एफ डैश सी आपको जो फंक्शन गिवन है उसका वन टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एफ डैश एक्स होगा, उसमें एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे। तो एफ डैश सी, उस एफ डैश सी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इसकी जगह। इट्स ओके। इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी की वैल्यू जो आपको इंटरवल गिवन है उसकी जो लास्ट वैल्यू है, इसकी जो सेकंड वैल्यू मान लो, उसको हम पुट करेंगे एक्स की जगह, वो होगा एफ बी माइनस एफ ए। फर्स्ट वैल्यू को एक्स की जगह पुट करेंगे, वो एफ ए होगा, अपॉन बी माइनस ए, सेकंड वैल्यू ए माइनस फर्स्ट वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, सी की आएगी, और वो सी की वैल्यू बिलोंग किसी हो, ए कोमा बी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। इट्स ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पीरियड में। इट्स ओके, थैंक्स। इसको आप अच्छे से माइंड करना, अंडरस्टैंडिंग करना इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।